حقیقی شاگردیت کے لیے تیاری. متی کی انجیل 16 باب 24 وہ ذرا پڑھنے میں مدد کیجیے گا. متی رسول کے ماتم لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 16 باب اس کی 24 ورس. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا. کن سے کہا جی؟ اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سبھی کون ہیں؟ شاگرد. وہ کون ہیں؟ سب کہیں میں شاگرد ہوں. کہیں میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں. اگر ہم سب یسوع مسیح کے شاگرد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں اب بیان ہونے والی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. یہ کن کے لیے ہیں؟ پڑھیے ذرا. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا جی کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہیے. اردو ادب کے اعتبار سے یہ جو لفظ اگر ہے ہم اسے حرف شرط کہتے ہیں. جب بھی ہم کوئی شرط لگانا چاہتے ہیں, کوئی شرطیہ جملہ بولنا چاہتے ہیں, اس سے آگے کوئی شرط رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے کوئی شرط ہے. تو شرط کیا ہے؟ پڑھیے ذرا. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے جی تو اپنی خودی کا انکار کرے. کیا کرے جی؟ کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار. آگے. اور اپنی صلیب اٹھائے. اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بول. اور میرے پیچھے. 3 چیزیں ہیں. کتنی؟ سن لیجئے, گن لیجئے. پہلی چیز اپنی خودی کا انکار کرے. اپنی خودی کا انکار کرے. نمبر 2 اپنی صلیب اٹھائے. اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. میری پیروی کرے. کیا کرے جی؟ میرے پیچھے چلے. اب یاد رکھیں, خودی کا انکار کرنے سے مراد خود انکاری نہیں ہے. خود انکاری فرق چیز ہے اور خودی کا انکار کرنا فرق چیز ہے. خود انکاری کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے کنٹرول میں دے دینا. خودی کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے. اور خود انکاری کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بعض کھانوں سے, بعض باتوں سے, بعض چیزوں سے روک لینے کا نام خود انکاری ہے. یعنی میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں وہ کھاؤں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں وہ کروں گا. لیکن خودی کا انکار کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے مسیح, اپنے خداوند, اپنے استاد کے ہاتھوں میں دے دینا. اس کا مطلب ہے خودی کا انکار کرنا. اگلا سٹیپ ہے اپنی صلیب اٹھانا. کیا ہے اس کا اگلا سٹیپ؟ کیا ہے؟ اپنی. اچھا, بہت ساری تشریحات اس بات کی جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو سادہ انداز میں بتانا چاہتا ہوں. یہ ڈسائپل شپ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بائبل کالجز کے اندر, سیمنریز کے اندر 6 مہینے تک یہ ڈسائپل شپ پڑھائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم سب کو سب سے پہلے یہ ریئلائز ہو جائے وی آر ڈسائپلز. ہم شاگرد ہیں, ہم عام لوگ نہیں ہیں, اور ہمارا فرض اولین, ہمارا سب سے پہلا کام سیکھنا ہے, پیروی کرنا ہے, نظم و ضبط میں آنا ہے. اس لیے شاگرد کا دوسرا کام ہے اپنی صلیب اٹھانا. کیا ہے جی کام؟ آوازاں گرمی تک بارش پہ رہی ہے, موسم ٹھنڈا ہے. ہاللیلویا, آوازاں بوجھ رہی ہیں. صلیب اٹھانا. جیسے ہی صلیب اٹھانے کی بات آتی ہے, ہم میں سے اکثر لوگ یہاں پہ آ کے سٹک ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں, سٹاپ ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی صلیب اٹھانا بڑا مشکل ہے. صلیب اٹھانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ شرم ساری اٹھانا, دکھ اٹھانا, اس کی خاطر شہید ہونا. ہر طرح کی باتیں اپنے بارے میں ناحق سننے کا نام صلیب اٹھانا ہے. برداشت کرنا, تحمل کرنا, صبر کرنا, دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا, یہ شاگردیت ہے, یہ صلیب اٹھانا ہے. اور آج ہمارے کلیسیائی حلقوں میں, معاشروں میں, مسیحی خاندانوں میں یہ چیزیں کہیں گمسم ہو گئی ہیں, جدا ہو چکی ہیں. اسی لیے انڈیا کا ایک بہت بڑا فلسفر مہاتما گاندھی, اس کا ایک تاریخی جملہ ہے. اس نے کہا تھا I love the Christ but I hate the Christianity. مجھے مسیح سے محبت ہے لیکن مسیحیوں سے نفرت ہے.
किसी ने पूछा इसकी वजह क्या है, उन्होंने कहा जो कुछ मसीह कहता है ना चलो हमें जो देता। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? ये दावा करते हैं मसीह होने का, लेकिन जो कुछ मसीह तालीम देता है ना वो इनके अंदर दिखाई कितने दूर दूर तक नहीं लगता। इसलिए वो कहता आई हेट क्रिश्चियनिटी, मुझे मसीह से नफरत है, मुझे मसीही लोगों से नफरत है, क्योंकि ये मसीह की पैरवी करने और उसका नमूना बनने में तो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज हमारे लिए ये शर्त है, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे, हम सब के लिए, अगर तू मेरे पीछे आना चाहे, अपनी खुदी का इनकार, अपनी सलीब उठाए, और नंबर 3 है मेरे पीछे चले। मेरे वो यानी उसकी तरह जिंदगी बसर करे। उसने कैसी जिंदगी बसर की है जिसमें हनीमी है, फरोख्तनी है, गुर्बत है, तरस है, मोहब्बत है, फजल है और हर खुदाई वस और खूबी मौजूद है उसकी जिंदगी के अंदर। ये है उसका नमूना, उसके मुताबिक चलने का नाम शागिर्दियत है। एक बात याद रखें, यीशु मसीह के नजदीक शागिर्दियत बहुत अहमियत की हामिल है। वो आज भी अपने शागिर्दों को, जो उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, जो नहीं चाहते उनसे नहीं, जो आज भी उसके शागिर्द बनना चाहते हैं वो उनसे अपने उन 12 रसूलों, अपने 12 शागिर्दों की तरह प्यार करता है। अब देखें, शागिर्द जो थे बड़े मजमा में अपने उस्ताद के साथ साथ है, और जब भी कोई ऐसी बात अपने उस्ताद से उनको पूछनी होती तो वो थोड़ा सा सेपरेट अपने उस्ताद को कर लेते हो। उस्ताद जी ठहरो जरा, इधर वो ए गल दसो कि असी ए चड़ेल क्यों नहीं काट सकते। तन्हाई में पूछते थे ना सवाल, अपने उस्ताद से सवाल पूछते थे, और उनका उस्ताद यानी यीशु मसीह सारा कुछ छोड़ के, मुनादी छोड़ के, हजूम छोड़ के, शिफा छोड़ के, सारी बातों को एक तरह करके, अपने शागिर्दों को साइड में करके उनको सबसे पहले बताता है तुम्हारे अंदर दुआ और रोजे की कमी है। उनको सबसे पहले बताया कि तुम्हारा सवाल क्या है और मेरा जवाब क्या है। मतलब ये है, यीशु मसीह की निगाह में, उसके नजदीक शागिर्दियत इंतहाई अहम पहलू है। अगर आज हम शागिर्द नहीं बनते, इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह की निगाह में अहमियत के हामिल नहीं। अगर आज 2000 साल गुजर चुके हैं मसीहत को जन्म लिए हुए, और अगर आज भी हम सिर्फ चर्च में बैठे हुए ईमानदार ही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तक हम उस यीशु मसीह की जो हीने हयात है, उसकी पाक जिंदगी है, उसका जो नमूना है, हमने उसकी पैरवी करने की कोशिश ही नहीं की। हमने शागिर्द बनने की कोशिश नहीं की। अब मुख्तसर तौर पे मैं आपको छोटी छोटी जो शराइत हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत वसी टॉपिक है, 6-6 माह तक पढ़ाया जाता है डिसाइपलशिप को, लेकिन मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ शागिर्द बनने की शराइत क्या है। शागिर्द बनने की हकीकी शर्त यह है कि एक शख्स अपने आप को पूरे तौर पे खुदावंद यीशु मसीह के सपुर्द कर दे। मसीह खुदावंद को ऐसे, सुन लीजिए, मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं। बेटे बात नहीं करनी, जरा मेरी बात को अपने गौर से सुनो। मसीह खुदावंद को ऐसे शागिर्दों और ईमानदारों की जरूरत नहीं है जिन्हें छुट्टी वाले दिन सिर्फ 2 घंटे कट के ते गिरजे आके ते यीशु मसीह के उत्ते चंगा वड्डा सहन करके ते 6 दिन उन्हें पूछा नहीं ना। सही मैं बात आपको बता रहा हूं। ऐसे शागिर्दों की जो अपने तातिलात, अपने फुर्सत के लम्हात यीशु मसीह को देते हैं। चलो जी हुण टाइम लग गया है, वो थोड़ा जा गिरजे भी हो गया, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह को ना तो अपने जमाने, आप जानते हैं पहले उसके 12 शागिर्द थे, फिर 70 शागिर्द थे, ऐसे ही ना। पहले 12 थे और बाद में कितने बन गए, तो बाद तो साथी बाद 70 नजर आते नहीं, कितने 70 को नहीं करते थे, उन्होंने को टाइम ही कोने से वो आए सब थोड़ी देर लिए यीशु मसीह ने थोड़ी देर पीछे वेख्या, टेस्ट उस लिया, वेख्या हाँ भाई ठीक है सारा कुछ, तो उन्हें क्या
کہ بھئی انج نہیں کرنا چاہیے, زندگی انج گزارنی چاہیے, وہ لوگ کہتے ہیں وہ بھائی ہے تو تعلیم ہی بڑی ناگوار ہے, یہ پیچھے چلنا فضول ہے, آئیو کسی فریسی نبی وہ نہیں شاگردی کرتے ہیں, کم از کم ساری اصلاح کاری تو نہ کرے. ہماری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ پولس رسول کے خطوط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج ہر شخص اپنے کان کی کھجلی کے مطابق استاد ڈھونڈتا ہے. وہ یہو جہا استاد لگتا ہے جہاں انہوں میٹھیاں میٹھیاں گلاں سناوے, آخے تینوں تے آندا ہی بڑا کچھ ہے, اور تو تے بھائی نیکوکار ہی بڑا ہے, تو بہت اچھا آدمی ہے, ہر بندے میں اجرا استاد چاہیے. کسی کو ایسے استاد کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہے کہ تجھ میں یہ کمی ہے, اس کو دور کر, تجھ میں یہ کمی پائی جاتی ہے. ہر شخص اپنے کان کی کھجلی کے مطابق استاد ڈھونڈتا ہے. آج کلیسیاؤں میں سب سے بڑا فقدان روحانی بیداری نہ ہونے کی وجہ سے یہی ہے, بحران ہے کلیسیاؤں میں. جب بھی کسی شخص کی, ہم یہاں پہ پلپٹ پہ کھڑے ہیں نا, میں ہوں, پادری صاحب ہے, کوئی بھی شخص یہاں پہ آ کے خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے, تو میری نظر میں, آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ ذیشان صاحب. میری نظر میں یہ محض ذیشان صاحب نہیں, بھائی وقار محض نہیں. میری نظر میں یہاں پہ کوئی بھی منادی کرنے والا, تعلیم دینے والا, واعظ کرنے والا شخص ہے, وہ سب کے اس کے لیے سب شخصیات جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ سب ایکول ہیں, ایک جیسے ہیں. سب باتیں جو خدا کے کلام میں موجود ہیں وہ ان سب کے لیے. بعض لوگ ایویں ہی غصہ کر جاتے ہیں, انہوں نے اج ساری گلاں مینوں لا دتیاں جے, بھائی ساڈے کول اتنا ٹائم نہیں کہ تہاڈی شخصی زندگی کا جائزہ لیندے ہو. سیدھی سی بات میں آپ کو بتا, ہم کسی کی زندگی کو فوکس کر کے کوئی بات نہیں کرتے, ہم صرف خدا کے کلام کی حقیقی باتیں کرتے ہیں. کوئی بھی خدا کا خادم ہے, جب یہاں کبھی بھی یہ بات نہ سوچیں, اگر خدا کا کلام آپ کو کسی جگہ پہ ہٹ کرتا ہے تو اپنی زندگی کے اندر کمیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر لال دین صاحب بہت بڑے خدا کے خادم گزرے ہیں. اس بندے کو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک, کہاں سے لے کے, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پوری بائبل حرف بحرف لفظ بلفظ زبانیات, اس کو امریکن یونیورسٹی نے کہا کہ یہ چلتی پھرتی بائبل ہے. یہ کیا ہے جی؟ چلتی پھرتی بائبل. آپ اسے کوئی بھی بات پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کہاں پہ لکھے, فوری طور پہ آپ کو بتائیں. وہ شخص جب پہلی بار خدا کے گھر میں گیا, چرچ میں گیا, تو خدا کے خادم نے پلپٹ سے کلام پیش کیا کہ انہوں اپنی کمیاں نظر آئیں, تو جدوں اپنی کمیاں نظر آئیں تو گھر دوڑا گیا تو جا کے مدان کٹ لیا. کی کٹ لیا بڑا موٹا سارا ڈنڈا کٹ لیا, تے آ کے پادری صاحب کو پی گیا, آندا ساری گلاں مینوں لا دتیاں نے. ٹھیک ہے, ایک ہفتہ گزر گیا, دوسرے ہفتے پھر ایسا ہی ہوا, پھر وہ گیا. جب وہ ڈنڈا لینے کے لیے گھر گیا تو راستے میں خدا کا نور اسی طرح جیسے دمشق کی راہ پر پولس کے اوپر چمکا, خدا کا نور اس پر چمکا. اس نے کہا کہ کیا تو میرے خدام پر ہاتھ اٹھائے گا؟ میرے خادم میرے آنکھ کی پتلی ہے, میں ان کے لیے غیرت رکھتا ہوں. اسی وقت سجدے میں گر گیا, آگے پادری صاحب کے پاؤں میں گر گیا, سر جی مجھے معاف کر دیں. ایسا تبدیل ہوا, اس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا. آج شیخوپورہ کے اندر LBI لاہور بائبل انسٹیٹیوٹ بہت بڑی سیمنری اس نے کئی پچھلے ایک صدی سے قائم کر کے رکھی ہوئی ہے. آج بھی سینکڑوں شاگرد وہاں پہ ہر سال تیار ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. ہاللیلویا. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ کلام آپ نے مجھے لگا کر دیا ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے اور آپ شاگرد ہیں اور شاگردوں کی اصلاح کاری. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کئی باتیں ہمیں بھی ہٹ کر جاتی ہیں, اور میری ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ آرزو رہتی ہے کہ خداوند جب بھی تو اپنے خادم کے وسیلہ سے کلام کرے, میری کمیوں کو مجھ پر عیاں کرنا, میری کمزوریوں کو میرے سامنے کھول دینا, دکھانا کہ میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, مجھے بتا. اور جب خدا یہ ساری باتیں بولتا ہے تو میں نے کبھی خدا سے کبھی استفسار نہیں کیا, کبھی سوال جواب نہیں کیا. خدا میں نے خداوند سے ہمیشہ ڈیپینڈ کیا, خداوند یہ کمی مجھ میں موجود تھی, میں نے اپنے آپ کو تیرے کلام کے مطابق تولا اور میں کم نکلا,
हालेलुया। सो शागिर्द की ये खूबी होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अपने जो फारिग नबाजी के लम्हात हैं, जो तातिलात हैं, जो फुर्सत के लम्हे हैं, सिर्फ वो खुदा को न दें, अपना प्रॉपर टाइम खुदा को दिया करें। पहली खूबी सुन लीजिए, वो यीशु मसीह से इंतहाई मोहब्बत रखता है। वो यीशु मसीह से वो जी चंद एक हवाला जात मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालने में मदद कीजिएगा। वो यीशु मसीह के साथ इंतहाई मोहब्बत रखता हो। लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब 26 बयान निकालिए। पहली खूबी क्या होनी चाहिए? पढ़िए जरा 26 बयान। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 14वां बाब, उसकी 26वीं वर्ष। अगर कोई अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, सुन लीजिए, शागिर्द बनने के लिए ये पहला कदम सुन लीजिए, पहली खूबी सुन लीजिए, पहली शर्त सुन लीजिए। उसको अपनी जान से भी दुश्मनी करनी है। उसको वो सब भी नहीं करना जो उसका दिल चाहता है। अपनी जान से दुश्मनी करने का मतलब ये है, उसको जो कुछ पसंद है उसको तर्क करने का नाम शागिर्दियत है। जो कुछ वो खाने का दिल उसको करता है, बड़ा दिल करता है, कुर्बानी का गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, अगर वो नहीं खाता तो फिर वो क्या है? शागिर्द है। जो कुछ उसका दिल करता है वो नहीं करता तो इसका ये शागिर्दियत है। फिर पढ़िए जरा आगे, यही इसी आयत को जरा रिपीट कीजिए। बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो। सुन लीजिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों और बच्चों, ये शर्तें अवलीन है। खुदा यीशु मसीह ने ये हमारे सामने ये शर्त रखी है कि अगर तुम अपनी ज़ात में अपने अंदर इनको मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इन सबको छोड़ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नो, इनकी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करना है, बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करना है, माँ बाप के फ़राइज़ को सरअंजाम देना है, रिश्तेदारों की तमाम मोहब्बतों को उसी तरह कायम रखना है, हर एक चीज़ को मैनर्स के अंदर रखना है। लेकिन अपनी ज़ात में जो अव्वलीन तरजीह है, जो अव्वल दर्जा है, वो किसे देना है? खुदावंद यीशु मसीह। पहली खूबी। दूसरी खूबी, अपनी खुदी का इनकार करें। वो क्या करे? अपनी, मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा पहले ही बहस कर चुका हूँ। और नंबर 3 है मसीह की पैरवी करना। मसीह की एक शागिर्द जो है उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चले। मत्ती की इंजील 16 बाब की 24 आयत जरा निकालिए। इसे समझने के लिए हमें अपने आप से सिर्फ ये पूछने की जरूरत है कि यीशु मसीह की जिंदगी की क्या खुसूसियात थी। पढ़िए जरा 16वां बाब उसकी 24 में। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, किन से कहा जी? अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे जी तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी खुदी का इनकार करे। हमें ये देखना है कि यीशु मसीह की जिंदगी, उनकी जिंदगी खुदा की मर्जी पर चलने वाली जिंदगी थी क्या? ऐसा है? उसकी जिंदगी पाक जिंदगी थी, कुव्वत से भरी हुई जिंदगी थी, रूहुल कुद्दस से भरी हुई जिंदगी थी, बेगर्ज जिंदगी थी। वो हद दर्जा ज्यादतियों के बावजूद सब्र और बर्दाश्त करने वाली जिंदगी थी। क्या अगर आज हम शागिर्द बनना चाहते हैं, उसकी जिंदगी की पैरवी करना चाहते हैं, तो क्या हमारी जिंदगी में ये सब चीज़ें मौजूद हैं? क्या हम उसके नमूने, उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? हमें ये थोड़ी देर के लिए ये देखने की जरूरत है। आज के कलाम की आखिरी खूबी, फिर कभी खुदा ने मुमकिन किया तो इस पर दोबारा बात करेंगे। आखिरी खूबी पढ़िए जरा, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब 31 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 31 आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा है? ये है खुदा के कलाम में मुतवातर कायम रहना, मुसलसल खुदा के कलाम में कायम रहना। पढ़िए जरा यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, हाँ जी 31 में।
31वीं वर्ष। पस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जी, जिन्होंने उसका यकीन किया था। जिन्होंने उसका क्या किया था? यकीन। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का यकीन किया है कि वो निजात देगा? कोई नहीं हाथ ना परेशान हो गए तो वहाँ सारे किया चुप सा करेंगे। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हम सब ने अपनी जिंदगी में यकीन कर रखा है कि यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात देता है। यकीन करते हैं ना? सो उस वक्त भी जितने यहूदियों ने यीशु मसीह का यकीन किया, पढ़िए कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम मेरे कलाम में कायम रहोगे, अगर तुम मुतवातर लगातार मुसलसल मेरी कलाम और मेरी इस्तकामत में कायम रहोगे, तो फिर ही तुम हकीकत में मेरे क्या ठहरोगे? शागिर्द ठहरोगे। बहुत सारे लोग हैं वो बड़े जोश के साथ बपतिस्मा लेते हैं, बड़े जोश के साथ तौबा करते हैं। कई दफा ऐसा होता है, मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है, बपतिस्मा देते हुए ना पादी साहब बपतिस्मा दे रहे हैं, खुदा दे खादम कोई भी बपतिस्मा दे रहे हैं, कईयां ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ जोश चढ़ जाता है। भाई साहब खलो जो ठहर जाओ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, मैं भी आऊँ ਲੱਗਾ था, मैं भी ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ मैं आज ही भाई साहब कहते हैं यार तू अपना ज़हन ते भाई तैयार कर लै, तू कोई तालीम ते पढ़ा, तू कुछ समझ ले। मैं समझ लिया तो सारी गल नहीं, मैं नहीं, मैनू बस तू ही फौरी तौर पर ऐसे पानी के विच गोता दे, मैं नहीं थोड़ी कोई भी गल सुनी। अब वो बड़े जोश के साथ आता, बड़े जज्बे के साथ आता, ते अगले दवार गिजे भी नहीं होता, फिर वही हुक्का ते वही सिगरेट ते वही जिंदगी, वही गाना, वही गलियां, वही गटर ते वही गप्पा, पुरानी जिंदगी, पुरानी इंसानियत। भाई आपको इतने जोश के साथ फैसले करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह की शागिर्दियत को अपनाना है तो बड़े सोच के, समझ के, हर एक चीज के ऊपर ध्यान करके फिर फैसला करें। ऐ ना हो कि तुम्हारा जज्बाती फैसला एक हफ्ते के अंदर ही बदल जाए। इस हफ्ते तुम शागिर्द हो यीशु मसीह दे, ते अगले जड़े ना एतवार तुसी किसी होर दे शागिर्द बने हो। इसलिए जब भी आप शागिर्दियत में आए, बपतिस्मा लेने लगे, तौबा करने लगे, रिपेंट करने लगे, अपने दिल के अंदर पहले अपने आप को जांचें, क्या मैं इस बात पे कायम रह सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये चीज़ों को तर्क कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी कमियों को छोड़ सकता हूँ? क्या मुझ में इतनी सकत है? मैंने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने बायक वक्त फैसला किया, एक ही टाइम में खुदा को कबूल किया और उनकी जिंदगी यकसा तब्दील हो गई। और ना सिर्फ उनकी जिंदगी यकसा तब्दील हो गई, बल्कि उनके वसीला से कई सैकड़ों लोगों की जिंदगियां यीशु के जलाल के लिए तैयार हुई। हालेलुया। ऐसे भी हो सकता है, दोनों चीजें मुमकिन हैं, लेकिन उसके लिए लाजिम ये है कि हम क्या करें कि अपने आप को अपने अंदर पहले फैसला करें अच्छी तरह से। हम में से मैंने आपको पहले बताया, शुरू में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास शागिर्दियत की बुलाहट नहीं है। अगर कोई पासवान है वो भी शागिर्द है। अगर कोई मेरी तरह उस्ताद की खिदमत करता है, मैं उस्ताद, ये नहीं मतलब कि मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद की खिदमत, पांच रुकनी खिदमतों में से एक उस्ताद की खिदमत है, वो मेरे पास है, खुदा ने वो मुझे दी है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई मौलम है, कोई उस्ताद है, कोई पासवान है, या कोई गवाह लीडर है, कोई मुबशर है, या किसी भी तरह से खुदा की प्रस्तिश करता है, हम में से हर एक के पास शागिर्दियत की बुलाहट मौजूद है, और ये ज़रूरी है कि हम शागिर्द बने, अपनी बुलाहट को पहचानें। क्या आप यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं? क्या आप, ये लास्ट कॉल है इतलाक के तौर पर, क्या आप यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं? कितने, मैं आमतौर पर पूछना चाहता हूँ, कितने आज खुदा के कलाम की समझ आई? आइए यीशु के जलाल के लिए तालियां बजाएं। अगर आप यीशु मसीह के शागिर्द बनना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, आपको यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का सबसे अहम शख्स बनाने की जरूरत है। अगर नहीं तो आपको जिंदगी से मुकम्मल तौर पर धोखा दिया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है,
क्या आपने शागिर्दियत की कीमत अदा करने के साथ साथ उसकी अजर पर गौर किया है? याद रखें, अगर कोई शख्स इस ज़मीन के ऊपर अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी सलीब उठाता है, उसकी पैरवी करता है, इस दुनिया के अंदर उसको बड़े मसाइल, परेशानियाँ, दुख, रंज, मलाल, एज़ारसानियाँ, दूसरों की नाहक कही हुई बातें बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा अजर है। खुदावंद यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी आसमानी बादशाह को ज़मीन पर लाकर कायम करेगा तो वो कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे दहनी तरफ आओ और इस बादशाह को लो जो तुम्हारे लिए बनाया आलम से तैयार की जा चुकी है। हालेलुया। ये शागिर्दियत का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ये शागिर्दियत का सबसे बड़ा अजर है। इसलिए आज अपने दिलों के अंदर इस बात को जाने, समझे और इस पर गौर करें कि हम में से हर एक शख्स यीशु मसीह का शागिर्द है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।